have Ayushi Tiwari with us, and we cut. दर्द हो गया थोड़ी कटिंग. तो बहुत एक साल तो छोटी कंपनी में कर लो, फिर उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा अच्छी जगह. टियर 3 है तो फिर होना नहीं है कुछ, एंड मास रिक्रूटर कंपनी ही तुमको लेके जाएंगी. सो मोस्टली इसको माइंड में रखा रिज्यूमे क्रिएट करते हो. तो resume, while making resume, first of all I prefer कि that should be very ATS friendly. Whenever you are applying in a big tech company, so ऐसा नहीं होता कि वो directly HR के पास जाते हैं. So first of all there is very resume shortlisting by bots and all. So after this I did not receive any mail, I did not receive any call after within a few weeks. I waited for a few weeks but कुछ आया नहीं मेरे पास. So I thought कि maybe अब कुछ होगा नहीं. I was working there and वहाँ पे बस मुझे कुछ months ही हुए थे. But then I got the opportunity at Red Hat, so she asked that why am I keen in switching इतनी जल्दी. तो उसके बाद मेरा tech round I was not at all prepared. तो because it was all of a sudden everything was जल्दी so much. So yeah, so this round was around 2.5 hours and she asked. ऐसा क्या पूछ लिया था उसने? That I can't reveal, but like, yes. कैंपस में क्या हुआ कि कुछ months बाद कि वहाँ का business situation जो भी requirement वगैरह थी, layoff का time वैसे ही चल रहा था, so my offer got revoked. So, but तब तक मेरे पास ऑफ कैंपस Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So today in this video we will have Ayushi Tiwari with us who recently joined Red Hat and she will be sharing her experience, like what all the interview experience with the Red Hat. So now let's go. So hello everyone. Today we will have Ayushi Tiwari with us. We are from the same college as well and we are a batchmate as well. So hi Ayushi, how are you? Hello Himanshu, I'm good and how are you? I'm good also. So she recently joined a Red Hat. So now करते हैं बातचीत आयुषी से, देखते हैं उनका क्या experience था. So now let's start with the Ayushi. So give me a brief introduction about yourself. So hello everyone. My name is Ayushi Tiwari. I am based in Delhi and I am currently working as Associate Software Engineer in Red Hat. I have done my BTech from Guru Gobind Singh Express University and HMR Institute of Technology and Management College. So I am from 2023 batch and I have recently joined this company. That's all about me. Okay, great. So मैं सबको बता दूं हम सेम ही कॉलेज से है, HMR Institute of Technology and Management. हम बस हमारा सेक्शन अलग अलग था और हमने BTech सब इकट्ठे की है. So subjects भी सब इकट्ठे थे. So now next question. So yes Ayushi, what's motivated you to be in this session time? मतलब इतना session चल रहा है 2023 बैच के लिए as well 24 बैच के लिए. So क्या motivation मिलती रही, कहाँ से motivation मिलती रही कि कैसे apply करते रहे? मेरे साथ भी same time था, tough time तो सबके साथ है, तो motivation एक होती है ना, वो कहाँ से मिली? See, Himanshu, first of all, we are from Tier 3 college and when you say this कि Tier 3 है तो फिर होना नहीं है कुछ, एंड मास रिक्रूटर कंपनी ही तुमको लेके जाएंगी. So mostly people expect the same and there it happens most of the time with me also. Like I connected with a few people on LinkedIn and they say कि नहीं Tier 3 कॉलेज है, थोड़ा बहुत एक साल तो छोटी कंपनी में कर लो, फिर उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा अच्छी जगह, कि Tier 3 का टैग हटा दो. बस so this was the main thing कि I wanted to prove कि नहीं Tier 3 कॉलेज से भी हो जाते हैं प्लेसमेंट, एंड even if someone is giving their best, so at one point of time कि हो जाता है तुम लोगों का, कि अगर सही तरह से तुम प्रैक्टिस वगैरह बिल्कुल डेडिकेटेडली एंड कंसिस्टेंटली कर रहे हो तो Tier 3 doesn't matter and everything and all. So label doesn't matter, what matters is your skills and your consistency in your practice. And sometimes it also happen कि तुम try कर रहे हो but failure is coming and continuously, but still you have to see that कि एक time के बाद तुम्हारा हो जाएगा, कहीं हो ही जाता है वो. फिर वही बेसिकली वही चीज है, सक्सेस पाने के लिए 2 से या 3 मेन की पॉइंट्स होते हैं, कंसिस्टेंसी एंड फेलियर्स को बार बार फेस करते रहो. सो यही बेसिकली मेन पॉइंट्स होते हैं सक्सेस के लिए. रिज्यूमे सबसे पहले जो हम अप्लाई करना होता है तो हमको एक रिज्यूमे चाहिए, एक शीट ऑफ पेपर विच आप 4 साल में आपने क्या क्या किया वो सब आपको एक फॉर्मेटेड वे से, एक ब्यूटीफाई वे से आपको डिस्प्ले करना होता है रिक्रूटर्स को. सो उसमें क्या टिप्स है कि रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, और क्या लगता है कि रेड हैट के लिए आपने जो रिज्यूमे बनाया वो कैसा रिज्यूमे बना, मतलब क्या पॉइंट्स को माइंड में रखा रिज्यूमे क्रिएट करते वक्त? तो resume, while making resume, first of all I prefer कि that should be very ATS friendly. Whenever you are applying in a big tech company, so ऐसा नहीं होता कि वो directly HR के पास जाते हैं. So first of all there is very resume shortlisting by bots and all. So that
you should have perfect keywords which is similar to your job description. So whatever is the JD of the jobs, so your resume should have those keywords so that it वो ATS friendly हो जाए और पास कर जाए. फिर उसके बाद वो HR के पास जाए. तो मेरा मेन फोकस यही होता था कि मेरा रेज्यूमे जो वो ATS friendly हो फर्स्ट ऑफ ऑल. सो फॉर दैट आई प्रेफर प्लेटफॉर्म्स लाइक ओवरलीव और नोवो प्लेटफॉर्म, नोवो रेज्यूमे मेकर. ओके, एंड अदर देन दिस व्हाट आई सी कि तो उसके अंदर तुम्हारे डाइवर्स, तुम्हारे स्किल्स हाईलाइटेड हो, बिल्कुल तुम्हारे लिंक्स उसके अंदर शो होने चाहिए. तो अगर यू हैव एडेड एनी प्रोजेक्ट, सो यू शुड ऐड एनी गिटहब रेपो व्हाटएवर of that project or any demo link of that project. So you should add links of those projects, as well as you should keep putting your profile like keep participating in many events, जिससे I will show कि आपके अंदर ये आप कंटिन्यूस लर्निंग का आपके अंदर एक वो है, एक जील है आपके अंदर. सो आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन मेनी ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस. आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट लाइक मेटा हैकर कप and competitions by American Express. So in that I have been semi-finalist also. So you should keep participating in many competitions and open source thing. So I used to think कि मेरा resume थोड़ा इस level का हो कि it should be very ATS friendly, as well as कि जहाँ पे मेरी continuous learning show हो उस resume में. Basically, how do you know about the open opportunities like in this recession period? बड़ा difficult हो जाता है कि reach out कर करके थक जाते हैं. मैं भी खुद reach out LinkedIn पे थक गया था एक तरह से reach out करके apply कर करके. तो क्या टेक्निक है और क्या करना चाहिए कि हमें कैसे open opportunities के बारे में और पता लगेगा? So when you're looking for the open opportunities, first of all, YouTube channels are the best platform where you can search for the opportunity. And when you're talking about diversity hirings also, so YouTube पे तो numbers of आपको diversity hiring भी मिल जाएंगी for girls even. Objection है मेरे को इस बात से. So yes, see, diversity hiring तो basically इसलिए करती हैं companies क्योंकि when I'm working in a tech based company, so उसमें देखते हैं कि एक टीम है अगर, तो उसमें मुश्किल से तुम्हारी 1-2 गर्ल्स ही होती हैं. तो कंपनी को लगता है कि थोड़ा बहुत मतलब एक रेशियो फिक्स हो जिसमें तुम्हारा गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो थोड़ा इक्वल हो. सो दैट्स व्हाई डाइवर्सिटी हायरिंग आर प्रेफर्ड. एंड अकॉर्डिंग टू मी कि वो जो हायरिंग भी करते हैं, सो वो तुम्हारा ऐसा तो होता नहीं है कि बस कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है, बट दे आर हायरिंग स्किल्ड पीपल बिकॉज आई हैव गिवन द Atlassian टेस्ट एंड Atlassian का ऑनलाइन असेसमेंट इज वेरी डिफिकल्ट. सो अगर वो क्वेश्चन कोई क्रॉस करके जा रहा है उसके बाद भी दे आर इंटरव्यू में दे आर नॉट आस्किंग बेसिक DSAs, दे आर आस्किंग सिस्टम डिजाइन क्वेश्चंस. सो इफ एनी गर्ल नो दैट थिंग, सो दे आर दैट स्किल्ड कि it's not just about the diversity hiring, and it's about the skills also. So Intuit and Atlassian, these companies hire through diversity programs, but their standard are very high, so skills also matters according to me. Yeah, so other than this ki you can get YouTube channels and Telegram channels you can join. ऑल्सो लिंक्डइन पे बहुत सारे आपको अपडेट्स मेल्स आती रहती, वो जैसे पोस्ट करते हैं लोग कि देयर इज हायरिंग इन देयर टीम एंड गिवन मेल आईडीज आर आल्सो शोन देयर. सो यू कैन कनेक्ट विद दोस पीपल थ्रू मेल आईडीज आल्सो. एंड आई यूज्ड टू डू कोल्ड ईमेलिंग्स आल्सो. सो लाइक आई हैव जॉइंड अ फ्यू व्हाट्सएप ग्रुप्स जिसके अंदर दे some people mention their email ID as well as their name or company name. There is a sheet. So उसके थ्रू भी मैं कोल्ड ईमेलिंग कर देती थी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रेफरल्स प्रोग्राम में. सो वैसे करती थी. एंड अदर थिंग कि आई यूज्ड टू रीच आउट टू पीपल ऑन लिंक्डइन कि अगर कोई ओपनिंग है तो आई विल सेंड कनेक्शन रिक्वेस्ट टू 10 पीपल, एंड इफ दे लाइक माय रेज्यूमे देन इन फ्यूचर इफ देयर इज एनी हायरिंग सो दे कैन प्रोसीड विद माय रोल और दे कैन प्रोसीड विद माय CV. ऑल्सो लिंक्डइन पे लाइक पीपल से कि वो नहीं आता अगर तुम उनको मैसेज करो तो फिर रिप्लाई नहीं आता है. हाँ, सो लाइक वी आर इतने बिजी वो लोग भी हैं कि इफ यू विल सेंड जस्ट अ हाय और हाउ आर यू, तो उसका रिप्लाई तो एक बार इंसान समझेगा, फिर दूसरी बार में दे विल इग्नोर इट. सो व्हाट आई प्रेफर इज कि मैं उनको मैसेज भेजूं तो आई हैव दैट पर्टिकुलर टेम्पलेट, एंड उस टेम्पलेट में मैं अपना सारा अचीवमेंट्स, अपनी सर्टिफिकेशन एंड माई एक्सपीरियंस, तो मैं उसके अंदर सब कुछ एक साथ पुट अप कर दूं एंड अपना CV अटैच कर दूं उसके साथ. No hi hellos and all, just my hello, just a hello and come to the point.
So whenever they will look at it, and if your resume is that impactful, so people reply. Mostly people, 80% people reply to my, in my case. So now let's move to the main question. So क्या hiring procedure है पूरा रेड हैट का, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का क्या hiring procedure किया और कैसे आपने अप्लाई किया रेड हैट के लिए? सो हिमांशु, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने अप्लाई किया था एक दूसरी जॉब आईडी के लिए. सो आई रीच्ड आउट टू पीपल ऑन लिंक्डइन एंड आई आस्क्ड जस्ट फॉर रेफरल कि अगर इस जॉब आईडी के लिए अगर ओपनिंग है उनके, मतलब रेफरल, इफ दे कैन रेफर मी. सो आई रीच्ड आउट टू पीपल ऑन लिंक्डइन, बट आफ्टर सम टाइम वो जॉब की वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई थी, तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई थी. बट आफ्टर फ्यू टाइम मैंने जिन लोगों को भेजा हुआ था उनमें से ही वन ऑफ द पीपल टेक्स्टेड मी कि देयर इज हायरिंग in Red Hat and if I am interested in joining the company, so they will proceed further. So like कि आप, मैंने वो चीज़ पहले भेजी थी, उस टाइम मुझे उस पर्सन का रिप्लाई नहीं आया था, बट आफ्टर सम टाइम मुझे रिप्लाई आया किसी और, बल्कि किसी और जॉब के लिए आया. जॉब रोल अलग था वो, तो that was for associate software engineer. So उस जॉब के लिए आया and that person shared the JD with me कि this is the job description and all. If I am interested, then they will proceed further and all. So after this, I did not receive any mail. I did not receive any call after within a few weeks. I waited for a few weeks, but कुछ आया नहीं मेरे पास. So I thought कि maybe अब कुछ होगा नहीं. But maybe around 15 days, I got a call from one of the people of Red Hat. And she just asked about a few details about myself and where I'm currently working right now, what all the experiences I have, and as I have done phone pe tech scholarship externship, so she asked details about all those things. And since Red Hat is a Linux based company, so आपको वो मुझसे वो पूछी कि आपको Linux कितना आता है and Selenium वगैरह बेसिक, लाइक फॉर बेसिकली ये जो था ये फोन पे ही एक इंटरव्यू टाइप हो गया, एचआर इंटरव्यू था ये, या क्या कह सकते हैं हम इसको जो फर्स्ट इट वाज अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, यस, whether I'm suitable for the job role or not. So it was for around 30 minutes, 20 to 30 minutes, and she asked why do I want to leave the company with इतनी जल्दी, क्योंकि I was already working in some company. So वहाँ पे I was an intern and after 6 months I got the full time opportunity from ICG Medical Global. So वो गुड़गांव की एक कंपनी है, that is a London based MNC. So I was working there and वहाँ पे बस मुझे कुछ months ही हुए थे, but then I got the opportunity at Red Hat. So she asked that why am I keen in switching इतनी जल्दी. So I gave a few reasons why am I suitable for the job and why I want to switch there. So it was a basic tech as well as basic knowledge about myself. Evening में मुझे फिर से कॉल आया था and it was from my principal TA, like HR call. So she asked about what are my expected CTC and basic HR questions. So this was also a telephonic conversation around 15 to 20 minutes. मतलब basic questions of HR, managerial questions. So ये सब questions she asked and after that she said that if I am interested, then my tech round will be conducted. So like she liked my profile and all. Okay. तो उसके बाद मेरा टेक राउंड, आई वाज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड, तो बिकॉज इट वाज ऑल ऑफ अ सडन एवरीथिंग वाज जल्दी सो मच. सो नेक्स्ट डे ही मेरा टेक राउंड हुआ था फिर मॉर्निंग में. तो माय फर्स्ट टेक राउंड वाज अराउंड 1.5 hours. So it's online coding round. Yeah, online coding round was around 1.5 hours. So this was my first technical round. Two DSA questions, basic questions which it was basic Python and all मुझसे पूछा गया था और DSA पूछा था मुझसे उन्होंने. I cannot reveal all the exact questions. But so जो जॉब डिस्क्रिप्शन में था और मेरी प्रीवियस कंपनी में मैंने क्या क्या काम किया है, सो उन्होंने मुझसे प्रॉपर डोमेन नॉलेज ली कि वेदर आई हैव द डोमेन नॉलेज ऑफ माय प्रीवियस कंपनी और नॉट. सो ही आस्क्ड अबाउट माय प्रीवियस कंपनी and what all the tech stack which I use,
ऑल्सो आई वुड रेफर कि सीवी में आपने जो भी लिखा है दैट शुड बी वेरी ट्रू. अगर आपको नहीं आता सो वो बहुत ज्यादा बैड इंप्रेशन पड़ता है. So this was one of the thing, like I mentioned one thing which I did not know so much about it. So yeah, so this happened and I thought that this will lead to some negative thing, but the interviewer was very cooperative and he just asked the basics and I explained him the basic of everything. But I would recommend that you should not mention anything as such if you do not have proper knowledge of that thing. So it was quite good and I got a good feedback from him. But ऐसा होता है ना कि like sometimes you expect कि मेरा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है, कि it was good but not. मतलब ऐसा लगता है आप और अच्छा कर सकते थे. Yes, exactly. ऐसे वैसा feeling होता है. So मुझे भी वही लगा था and I thought कि मे बी मुझे नेक्स्ट राउंड के लिए नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अप टू द मार्क मेरे साइड से नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं कई जगह पे रुक भी गई थी. लाइक कई क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में मैंने ज्यादा टाइम ले लिया था थोड़ा बहुत, बट इट डजंट मैटर एट ऑल. लाइक इट डिपेंड्स फ्रॉम इंटरव्यू टू इंटरव्यूअर ऑल्सो समटाइम्स, क्योंकि उन्होंने मेरी लॉजिकल बिल्डिंग स्किल्स ज्यादा फोकस किया, बिकॉज ही सेड दैट माय लॉजिकल बिल्डिंग स्किल्स आर क्वाइट गुड एंड मैं जल्दी चीजें ग्रास्प कर ले रही हूँ. सो दीज थिंग्स ही मेंशन्ड. बट आई टुक टाइम. सो यू नीड टू वर्क अपॉन कि आप डीएससी अगर कर रहे हो तो आप जल्दी जल्दी वो क्वेश्चंस का आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा फास्ट होना चाहिए. सो वन ऑफ द थिंग आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि उनका थॉट प्रोसेस वो थोड़ा उस पर वर्क करें. वो तो प्रैक्टिस करके भी जितने डीएससी क्वेश्चंस होंगे. यस एग्जैक्टली. सो एक वीक उसके बाद भी ही सेड दैट कि आई विल प्रोवाइड द फीडबैक टू द सीनियर मैनेजमेंट एंड जो भी होगा आपके पास मेल या कॉल आ जाएगी. सो आई वॉज नॉट सो श्योर कि मुझे आएगा कि नहीं आएगा. सो आई डिड नॉट गेट एनी कॉल विद इन अ फ्यू वीक. मतलब एक वीक के अंदर मुझे कोई कॉल नहीं आई थी आफ्टर माई फर्स्ट राउंड. एंड आफ्टर 11 days or maybe 12 days I got a call from my HR that I am selected and I am shortlisted for next round also. And next मेरा managerial round हुआ था with my manager who is my current manager, and this round was around 2.5 hours and she asked ऐसा क्या पूछ लिया था उसने? that I can't reveal, but like yes. So उन्होंने A to Z मेरा जो भी resume में था, she asked everything कि मेरा डोमेन नॉलेज क्या है, my programming language command, DSA's questions. So 3 DSA questions were asked from me and lead code easy to medium or these things were lead code easy to medium ही पूछा था. Okay. एंड उसके बाद मुझसे पूछा कि मेरी कंपनी की डोमेन नॉलेज एंड एवरीथिंग की हाउ अडैप्ट, लाइक बेसिक एचआर क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड. सो दिस राउंड वाज अराउंड बेसिकली वो जज कर रहे थे कि आप उनकी टीम के साथ अडैप्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. बेसिकली कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे थे. यस, कि आप कंपैटिबल हो भी या नहीं हो, कि मोर देन टेक how easily you will be able to adapt the environment of Red Hat. So this round was mainly focused on that thing. And after my managerial round I got a call from my HR maybe 10 or 11 days के बाद. फिर उन्होंने they declared that I am selected for it and they asked for my few details and I was selected. So this was all procedure and it took maybe around 1 month. So how was you feeling जब वो 10 से 12 days का गैप था, तो क्या फीलिंग चल रही थी अंदर, कैसा रोज लगता था? See हिमांशु, पहले तो मुझे फर्स्ट टेक राउंड के बाद नहीं लगा था कि मुझे कॉल आएगी, because I felt कि that was not up to the mark according to me, because I have given so many interviews in other companies also like Airbus and PhonePe. So बहुत सारे कंपनीज का I have interviewed. तो वहाँ पे ये होता है कि when you even give your best but still उसके बाद भी you get rejected, you lack somewhere, right? And यहाँ तो मुझे already लगा कि मेरी logical ability तो ठीक है but somewhere I lacked, कि मेरा thought process उस time पे थोड़ा slow था, कि मैं वहाँ पे lack कर गई. एक पेस नहीं आ पाता. इंटरव्यूज जब देते हैं ना, एक पेस होना चाहिए देने के वक्त.
अगर वो पेस मोमेंटम आपको exactly. मिलते ना, जो चीज आपको आती नहीं है आप वो भी अपने आप से थॉट प्रोसेस सोचने लग जाता है, अपने आप आंसर निकल जाते हैं. Yeah, exactly. That's what you're saying, right? How many questions you solved in a DSA? And क्या DSA की क्या स्टोरी रही है, कब से स्टार्ट किया एंड कहाँ से मोटिवेशन मिलने, मतलब कहाँ से पता लगा कि हाँ यार DSA भी एक नाम की चीज होती है बीटेक में, वो करनी चाहिए. Yeah, so like Himanshu, as you already know कि हमारे कॉलेज में DSA का ऐसा प्रॉपर कल्चर नहीं है. एक क्वेश्चन बीच में कि कॉलेज की प्लेसमेंट का क्या सीन है, मुझे तो पता ही है पर फिर भी कॉलेज की क्या सीन है प्लेसमेंट का, कॉलेज से की भी प्लेसमेंट. कॉलेज से आई गॉट द ऑफर फ्रॉम इनसाइट्स. कैंपस में क्या हुआ कि कुछ मंथ्स बाद कि वहाँ का बिजनेस सिचुएशन जो भी रिक्वायरमेंट वगैरह थी, ले ऑफ का टाइम वैसे ही चल रहा था, सो माय ऑफर गॉट रिवोक्ड. उसके बाद यार अच्छी कंपनीज आ भी नहीं रही थी, जो भी आ रही थी बहुत ज्यादा बॉन्ड वगैरह का लेकर के आ रही थी कि 1.8 ईयर 1.8 मंथ्स के लिए, सॉरी. तो आ भी रही थी कंपनीज. कंपनीज तो यार बहुत ही कम आ रही थी, एंड जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, लाइक बिल्कुल छोटे छोटे कंपनीज जो आपको नियर बाय एरियाज में दिख जाएंगी, वो वैसी कंपनीज आ रही थी. So yes, thank you Ayushi and congratulations once again for your new job and I wish you will have a great journey ahead. Thank you so much, Himanshu. Thank you for inviting me. Yeah. And all the best to people who are preparing for good job. And say all the best to me as well. I also know the best. You are already working in a good company. So say all the best to me. All the best to you too. Thank you. सो यस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना. एंड 24 बैच 25 बैच 26 बैच आई विल बी कम बैक विद न्यू कंटेंट, एंड ये वीडियो को शेयर भी कर देना अपने बैचमेट्स के साथ. एंड आई हैव ऑलरेडी कोलैबोरेटेड विद द डेवरेलो. इफ यू वांट टू लर्न अबाउट द डेव रिलेशनशिप्स एंड ऑल दैट स्टफ, देन यू कैन जॉइन दिस व्हाट्सएप कम्युनिटी एंड यू कैन ऑल्सो जॉइन माई व्हाट्सएप कम्युनिटी एज वेल. सो ये स्टे ट्यून्ड, आई विल बी कम बैक विद द न्यू कंटेंट.